Hello students, today we are going to start the first chapter of business studies in class 11 commerce. In commerce stream, business is the subject that is new for you because in earlier classes you have read science, physics, chemistry, but business is not taught to you in earlier classes. So business is the subject that is new for you. So I am going to start with the meaning of business because firstly I will start with the basic. मैं basic से शुरू कर रही हूँ कि business derive कैसे हुआ. तो I want to say कि word business is derived from the word busy. Busy means everybody knows कि engage रहना, किसी ना किसी काम में engage रहना, busy रहना, व्यस्त रहना. Now this is the derivation of the word business. अब क्वेश्चन ये आता है कि बिजनेस है क्या? What is business? So business is an economic activity. अब फिर एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? So understand the economic activity. It is necessary to know the human activity because economy activity comes in the human activity. It comes under the category of human activity. Human activities meaning जानना हो अगर तो यहाँ पर दो शब्द हैं human plus activities. तो human activities are those activities which are performed by human being. वो activities जो कि ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन एक्टिविटीज. नाउ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज क्लियर. दीज ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो बिजनेस इज कमिंग इन विच कैटेगरी? Business is an economic activity. So before knowing the meaning of business, it is necessary to know what is economic activity and what is non-economic activities. In non-economic activities, तो firstly we are moving towards the non-economic. हम सबसे पहले जाएंगे non-economic की तरफ. Non-economic activities are those activities which are done only for the psychological satisfaction. यहाँ पर और कोई रीजन है ही नहीं, सिर्फ एक रीजन है, दैट इज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू द टेम्पल, इफ अ पर्सन इज गोइंग टू द टेम्पल, इन द सेम वे इफ पर्सन इज डूइंग द चैरिटी, तो दिस चैरिटी वर्क इज ओनली डन फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. इन द सेम वे if your parents are doing for you, they are making arrangement of food, they are making arrangement of clothes, so they have only what, उनके पीछे उनका कोई monetary reason नहीं है, they are only getting the psychological satisfaction. तो non-economic activities are those activities which are done for the non-monetary motive. इसके पीछे कोई भी monetary motive नहीं है. जबकि जो economic activities हैं they have the monetary motive. These are done for the economic purpose. इनके पीछे monetary reason है जो कि किस लिए करी जा रही हैं? These are done to earn livelihood. These are the activities that are only done for earning the livelihood. So these are the activities that are done only for earning the livelihood. These are called the economic activities. Now, अब अगर हम ये कहें कि हमें इस डिस्क्रिप्शन से ये क्लियर हुआ कि नहीं कि what is the economic activity and what is the non-economic activity. So now it is clear to you कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जो कि सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए की जा रही हैं. जैसे चैरिटी करना, तो ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, तो ये नॉन इकोनॉमिक. जबकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं दैट आर ओनली डन फॉर द मॉनेटरी रीजन और टू अर्न द लाइवलीहुड, तो इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी. सपोज आई एम गिविंग यू सम एग्जाम्पल. सपोज कि अ टीचर इज टीचिंग इन द स्कूल,
So when he is teaching in the school, it is the economic activity. Or if the same teacher is teaching to his family members or to his son, daughter, brother, sister, so ये उसकी क्या बन गई, नॉन मॉनेटरी. तो every activity has two aspects. On one side it is monetary and other side it is non-monetary. So it means कि an activity can be economic as well as non-economic. एक activity इकोनॉमिक भी हो सकती है और वही एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है. जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें एक शेफ का, अगर एक शेफ एक रेस्टोरेंट में फूड कुक करता है तो ये उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में अगर कुकिंग कर रहा है तो उसके लिए उसको बदले में पैसे मिल रहे हैं, वो उससे अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, उसका मॉनेटरी रीजन है. तो इसको हम कहेंगे ये मॉनेटरी एक्टिविटी. लेकिन अगर वही शेफ अपने घर में कुकिंग कर रहा है तो ये उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके पीछे कोई मॉनेटरी रीजन नहीं है. तो अब हमें क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या. अब हम फिर से वापस आते हैं अपने उसी मीनिंग पर कि बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी. अब बीइंग बिजी इन व्हाट, इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. और अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीनिंग सबको क्लियर हो गया है. अब हम अपना नेक्स्ट पोर्शन लाते हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. The economic activities are classified in three parts. First is the profession, second is the employment, and third is the business. So one by one we will go through the meaning of profession, employment and business कि business, profession और employment का meaning क्या है. यहाँ पर हमारा subject है business, तो प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का तो हमें सिर्फ मीनिंग समझना है, बाकी हम एट लास्ट सिर्फ कंसंट्रेट हो जाएंगे बिजनेस पर. अब प्रोफेशन क्या होता है? जनरली यू हैव सीन द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, लॉयर, टीचर. दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ प्रोफेशन. सो प्रोफेशनलिस्ट गेट व्हाट? इन रिटर्न ही गेट्स द फीस. इन रिटर्न ऑफ हिज सर्विसेज ही गेट्स द फीस. तो एक पर्सन अगर किसी प्रोफेशन में है तो वो सिर्फ क्यों उस प्रोफेशन में आया है? टू अर्न द मनी, टू अर्न द लाइवलीहुड. तो प्रोफेशन क्या बन गई? इट बिकम्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन, फॉर एवरी प्रोफेशन देयर इज द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. जैसे कि फॉर डॉक्टर प्रोफेशन यू हैव टू गो फ्रॉम द क्लास 12 यू हैव टू चूज द बायो स्ट्रीम or you have to qualify the exams, NEET exams, and when you will be certified then you can practice as the doctor. So you are in need of specialized knowledge. अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा सोचे कि कॉमर्स करने के बाद वो मेडिकल स्ट्रीम में चला जाएगा तो क्या उसके लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हर प्रोफेशन के लिए एक स्पेशलाइज नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. अगर कोई लॉ प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसको LLB करना पड़ेगा. कोई टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है तो जिस भी सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइजेशन, उसको किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा, उसको B.Ed की डिग्री लेनी पड़ेगी. तो इन एवरी प्रोफेशन एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. फिर इन एवरी प्रोफेशन देयर इज द प्रोफेशनल बॉडी. इट मीन्स कि हर प्रोफेशन को गवर्न कौन कर रहा है? इट इज गवर्न्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी. जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉयर प्रोफेशन. तो लॉयर के प्रोफेशन को कौन गवर्न कर रहा है? दैट इज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. इन द सेम वे वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर. तो डॉक्टर का प्रोफेशन कौन गवर्न करता है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. तो जनरली प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल बॉडी है और वो प्रोफेशनल बॉडी उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को गवर्न करती है एंड क्या डिजाइन करती है? कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन. उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को
गवर्न करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन करती है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन. There are the three important points. First, there is the need of specialized knowledge. Second, every profession is governed by the professional body, or these professional bodies are doing what? These professional bodies are designing the code of conduct for every profession. Now we are coming to the next, that is the employment. Now the next is economic activity is the employment. I have told you कि economic activities are classified in three parts: profession, employment and the business. The first is now the second activity is the employment. What is the employment? Employment is the agreement between the employer and the employee. अब एम्प्लॉयर कौन होता है? ही इज द जॉब प्रोवाइडर. जो जॉब प्रोवाइड करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड द एम्प्लॉयर. और जो जॉब सीकर होता है, मतलब जिसको कि जॉब की डिमांड होती है, जो जॉब करना चाहता है, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉयमेंट में देयर आर द टू पार्टीज, एम्प्लॉयर एंड द employee. So employment is the agreement between the employer and employee. In this, employee works for the employer. एम्प्लॉय किसके लिए काम कर रहा है? एम्प्लॉयर के लिए. तो यहाँ पे जो जॉब सीकर है, इफ यू विल गेट अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर, तो जो एम्प्लॉय है ही विल वर्क फॉर द एम्प्लॉयर, और इन रिटर्न ऑफ हिज सर्विसेज ही विल गेट द पेमेंट. अब यहाँ पर एक सिंपल सा वर्ड आता है, एम्प्लॉयज वर्क फॉर एम्प्लॉयर एंड गेट्स रिम्यूनरेशन. रिम्यूनरेशन का मतलब होता है वॉट एवर पेमेंट इज मेड इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज. तो जो पेमेंट किया जाता है इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड द रिम्यूनरेशन. अब ये रिम्यूनरेशन सैलरी भी हो सकती है, ये रिम्यूनरेशन वेजेस भी हो सकती है. तो वॉट एवर पेमेंट इज मेड इन रिटर्न ऑफ द सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड द रिम्यूनरेशन. ये रिम्यूनरेशन सैलरी भी है और ये रिम्यूनरेशन वेजेस भी हो सकती हैं. सो मीनिंग इज क्लियर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द प्रोफेशन. नाउ वी आर कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ अस, that is the business topic. Now we are concentrating on our main topic, that is the business. This is the third type of economic activity, and mainly we have to concentrate on the topic business, because our whole syllabus is of business. हमारी पूरी बुक ही क्या है? बिजनेस स्टडीज, जिसमें कि हमें बिजनेस के बारे में पढ़ना है. तो जो बाकी दो एक्टिविटीज थी, जिसको कि हमने कहा प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, उनका तो हमें सिर्फ मीनिंग समझना है, लेकिन हम अपने आप को पूरी तरह से कंसंट्रेट कर लेंगे अब बिजनेस पर. व्हाट इज द बिजनेस? अभी तुमको मैंने बताया था कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का मैंने मीनिंग भी बताया. द एक्टिविटी दैट इज डन फॉर द लाइवलीहुड. इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस. आफ्टर मेकिंग क्लियर द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, नाउ वी आर कमिंग ऑन द मीनिंग ऑफ बिजनेस. सो अब मीनिंग क्लियर होगा कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करती है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट. तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व द प्रोडक्शन और द प्रोक्योरमेंट. अब प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन इज दैट कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट. दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन. कि जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनपुट को आउटपुट में, दैट इज कॉल्ड
प्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू सेमी फिनिश्ड और द फिनिश्ड प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन जैसे कि सपोज वी गेट द कॉटन फ्रॉम द फील्ड्स, तो कॉटन क्या है, यहाँ पर इनपुट है। अब इस कॉटन से क्या बने, सबसे पहले थ्रेड बने, तो थ्रेड हमारा क्या है, सेमी फिनिश गुड। अब उन थ्रेड से क्या बनेगा, कॉटन क्लॉथ, तो ये हमारा क्या है, फिनिश गुड। कॉटन इंडस्ट्री के लिए क्या है, ये फिनिश गुड है। तो इसमें क्या हुआ, इनपुट था कॉटन और उस कॉटन को फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया गया। सो दिस इज द प्रोडक्शन। सो अगेन बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द नाउ वी आर कमिंग टू द प्रोक्योरमेंट। अब हम आते हैं प्रोक्योरमेंट पर। इन प्रोक्योरमेंट व्हाट इज हैपनिंग, प्रोक्योरमेंट में सिर्फ गुड्स की ऑब्टेनिंग हो रही है। यानी सपोज अगर तुम ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन को देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, वो होलसेलर ने गुड को ऑब्टेन किया प्रोड्यूसर से और किसको बेचा, रिटेलर को। फिर रिटेलर ने गुड को किससे ऑब्टेन किया, होलसेलर से, और फिर रिटेलर ने गुड ऑब्टेन करने के बाद क्या कर दिया, कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो अगर हम प्रोक्योरमेंट कहें तो प्रोक्योरमेंट में प्रोडक्शन वर्क इज नॉट कमिंग, इट इज ओनली इन्वॉल्विंग द ऑब्टेनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ ऑब्टेनिंग आ रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन वर्क इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसमें गुड को ऑब्टेन किया जा रहा है प्रोड्यूसर से और तब उसको कस्टमर को सेल कर दिया है। तो यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन में दो मिडिल मैन आ रहे हैं। एक मिडिल मैन है हमारा होलसेलर और दूसरा मिडिल मैन है हमारा रिटेलर, और इन दोनों मिडिल मैन को कंबाइनली हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड द ट्रेडर, बिकॉज ये दोनों कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ गुड्स को ऑब्टेन करते हैं और ऑब्टेन करने के बाद उसको कंज्यूमर को सेल कर देने। जैसे वी आर सीइंग दिस कि ट्रेडर इज ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर, मतलब उसने गुड को प्रोक्योर किया। प्रोक्योर वर्ड का मीनिंग होता है ऑब्टेन करना। तो ट्रेडर ने गुड को प्रोड्यूसर से ऑब्टेन करा और ऑब्टेन करने के बाद उसने कस्टमर को सेल कर दिया। तो गुड की ऑब्टेनिंग है कि फर्स्टली उसने गुड को ऑब्टेन किया, प्रोक्योर किया, और प्रोक्योर करने के बाद उसने कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो ये है हमारा प्रोक्योरमेंट। तो विद दिस द बिजनेस मीनिंग इज नाउ क्लियर टू यू कि बिजनेस is an economic activity which involve production or procurement of goods. What is the main reason? For earning the profit or for earning the livelihood. तो बिजनेस करने का मेन रीजन सिर्फ यहाँ पर यही है, प्रॉफिट अर्न करना या लाइवलीहुड को अर्न करना। सो this is clear to you. Now the meaning of business is clear to everyone. Now in next video we will concentrate ourselves only in the features of business और we will go through only the business activities, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ बिजनेस है। तो अब हम अपने आप को पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर लेंगे बिजनेस पर।